हैप्पी लोहड़ी। नया साल भी और लोहड़ी भी। जो नहीं थे लास्ट टाइम उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। सो लोहड़ी मना लो हरी, ले लो हरी, लो हरी। This voice is enough. Didn't have? Okay. So, लोहड़ी पहला पहला मीनिंग कि उसको हमने मेरा सब कुछ अर्पण कर दिया। I surrender whatever I was thinking that it belongs to me. Now I surrender it to you. Lohari. Good or bad, whatever it was, even if it was something very good, I used to feel this is my achievement, my attainment, because जब हम कहते हैं मेरा मेरा, तो मेरा से बहुत सारा अभिमान आ जाता है। तो इसलिए जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा। तो जब तेरा ही है, तेरा ही था, so I once again surrender whatever it was, and at the same time I also surrender my weaknesses, my some old sanskars, old habits, which is a barrier in my spiritual progress, and we often realize that also. We often do realize that yes, this is something, one of my sanskar, one of my habit or my old pattern, which is every time I'm thinking that yes, only this I have to change, only a little bit I have to change, I will start it. We make resolutions, we do a lot for that, but at the same time we have to get the strength from the Supreme. So getting that strength from Baba will help me. So that is why when we are lighting that, igniting the fire, so there are many beautiful meanings associated with that actually. लोहड़ी तो हम सिर्फ नॉर्थ में ज़्यादातर मनाते हैं, लेकिन there are other festivals, जैसे अभी आज लोहड़ी तो कल मकर संक्रांति होगी, and there are other festivals all over India and with different names we are celebrating. So if you talk about Makar Sankranti also, Makar is like Makar Rashi, it's entering into Makar Rashi. At the same time, what is Sankranti? Yes, it is, if you divide it, you divide it into two words, Sanskar and Kranti, Sukranti. Sankranti means Sukranti. Su means good. So like there are many revolutions happening, only with revolution transformation happens. That is why it is represented by fire. Because you need any kind of transformation if you want to make within yourself, inside or outside in the society, it has to be like a fire. थोड़ी थोड़ी आग से काम नहीं चलता है. Sometimes we have a little thought, and or for short time I have a thought of transformation, I feel that it should be done, and then after some time it is vanished, or it is influenced by other factors of our life or external situations. There are so many different factors. So उससे जब फिर influence होता है, फिर ठंडा हो जाती है वो fire. So fire कैसी चाहिए? If you want to make transformation, so when we say संक्रांति, so सुक्रांति, अच्छी चीज के लिए भी तो क्रांति की तरह लाना पड़ेगा, then only you can bring about that change. So it should be like a revolution. So any good thing, if I want to implement in my life, so that is the way, that I have to make it consistent, regular, no matter what. Then no matter what is the external situation, what are the circumstances, but I have that, I make that commitment with myself and with God. So वो जब तक वो commitment नहीं है, तब तक change नहीं हो सकता है.
तब तक तो सिर्फ आलू भी उबाला नहीं जा सकता है, बाकी चेंज तो छोड़ो आप। आलू उबालना सबसे इजी होता है, बट इफ यू पुट ऑन द फायर and then you put the cooker on that, after 2 minutes you turn it off, गैस बंद कर दिया, फिर दोबारा से 5 मिनट के बाद ऑन किया, फिर 1 मिनट के बाद ऑफ कर दिया, सारा दिन लगे रहो, आलू बॉयल नहीं होगा, और लास्ट में वो ऐसा हो जाएगा कि वो बॉयल होगा ही नहीं, फिर वो और बिगड़ जाएगा, राइट? अगर बार बार वो फायर को हम ऑफ करते रहेंगे तो द सेम थिंग हैपन्स इन द प्रोसेस ऑफ चेंज। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं है तब तक ट्रांसफॉर्मेशन, तब तक वी कैनॉट ब्रिंग अबाउट दैट चेंज इन आवर सेल्फ एंड इन द सोसाइटी एज वेल। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वेयर आर द स्पीकर्स? वॉल्यूम कैन इंक्रीज? शी कैन नॉट हियर आई थिंक। स्पीकर्स कहाँ पर है? अच्छा, नाउ इज बेटर? अभी ठीक है? ओके, सो वी नीड कंसिस्टेंसी टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी फैक्टर मेरे लिए बैरियर नहीं बने, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई वन थिंग, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू एक्नॉलेज दैट बैरियर और एनी प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड, it is inside. No one else can create any barrier for me. It's only me, my old habits. किसी ने मुझे कुछ भी कहा, लेकिन उसके कहने का मेरे ऊपर असर क्यों हुआ? That is because of my weakness. I have to identify my weakness and then transform. इसलिए लोहड़ी में हम क्या करते हैं? तिल और मूंगफली और कॉर्न डालते हैं ना, कॉर्न भी डालते हैं। सो वी आर एक्चुअली डोनेटिंग, इट्स लाइक वी आर सरेंडरिंग आर inner weaknesses, putting into the fire. Putting into the fire means it's burning forever. क्योंकि अगर मैंने उसको जलाया नहीं, इसमें बहुत गहरा राज है। अगर पहली बात है कि आग कौन सी है वो, someone can help? Yeah. Okay, that's okay. So आग कौन सी है? आग है, आग शुरू होती है, ये है ज्ञान की अग्नि। ज्ञान की अग्नि है। ज्ञान के साथ वन इज विजडम, अनदर इज योगा, द कनेक्शन विद द सुप्रीम, बिकॉज as soon as I connect myself with the supreme, then that knowledge is turned into fire. Otherwise we know everything, but we are not able to do it because I have the knowledge but I don't have the power to change. I don't have the power to implement. Knowledge plus power is equal to transformation. So कोई भी ज्ञान का point जो मुझे ये लगता है मुझे पता है, I know. And we often say that if somebody is trying to tell me something, मुंह पे नहीं भी बोलेंगे तो अंदर में तो यही चलता है, I know. Who are you to tell me? I know better than you, right? So अंदर में तो ऐसे ही चल रहा होता है। So this is the major problem that I know. It's a very big issue, because if I don't know, then it's still better because I'm open to listen and imbibe something. But if I know and I'm not doing it, so this also becomes a habit, knowing but not doing. This becomes a pattern, that knowing but not able to do. So ये ऐसा ही फिर knowing but not doing is equal to frustration. It brings frustration, it brings irritation, it brings low self-esteem, low self-respect. अगर फिर नहीं कर रहे तो, so इसलिए knowledge plus power is important. So if as soon as I realize something, suppose I through some circumstances or situations I realize that this is something which is a barrier in my progress, in my internal or it's my weakness, then as soon as I realize, I take that strength from the Supreme immediately, because He is the giver. He is always giving. वो तो दाता है ना, देने वाला है, and He is always giving. Anyway, no problem. He is always giving, but am I able to take it?
आपने बचपन में वो सबने किया होगा आई थिंक, वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के, लेंस लगा के पेपर को बर्न करते थे ना, हम सबने किया हुआ है ना वो एक्सपेरिमेंट, सबने किया है। आप सूरज के लाइट के नीचे वैसे रख दो पेपर को, नथिंग हैपन्स, यू कैन नॉट इवन सी एनी काइंड ऑफ चेंज, थोड़ा बहुत हीट होगी बस। बट जैसे आपने वो लेंस लगाया, द लाइट, द एनर्जी इज फोकस्ड, एंड फोकस के ऊपर उसका जब वो लेजर की तरह हो गया ना, लेजर लाइट हो गई, एंड इट बर्न्स द पेपर। सेम थिंग इज अबाउट मेडिटेशन. So when I am sitting, meditating, focused on myself, and in that also if I am very clear, identifying my own weaknesses, कि आज मुझे meditation में ये शक्ति लेनी है, परमात्मा से ये शक्ति लेनी है, आज इस पे मुझे आज रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर सहन शक्ति थोड़ा कम है और आई एम लैकिंग पेशेंस. सो एज सुन एज आई रियलाइज दैट, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये लोग पता नहीं जब देखो ऐसा करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, आई जस्ट फोकस इनवर्ड्स एंड आई चेक माई सेल्फ, आई चेंज माई सेल्फ. फर्स्ट थिंग इज रियलाइजेशन, आफ्टर रियलाइजेशन कनेक्शन. सो विद दैट कनेक्शन आई रिसीव दैट पावर, आई रिसीव कि आज मुझे यही शक्ति लेनी है. और वो शक्ति कैसे आएगी, उसमें ज्ञान और मेडिटेशन साथ में चलते हैं, बिकॉज आई नीड द विजडम ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि पेशेंस कैसे आएगी. क्योंकि वैसे तो सिचुएशन ऐसी है कि गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि सामने वाला बात ही ऐसी कर रहा है, वो ऐसी बात कर रहा है जिसका कोई लॉजिक नहीं है और समझ भी नहीं रहा है, आप समझाओ वो समझता भी नहीं है, तो उसमें पेशेंस कैसे आएगी. फर्स्ट थिंग इज टू ट्रांसफॉर्म एंगर इनटू, एंगर को पेशेंस में चेंज करने के लिए एंगर का एंटीडोट क्या है. ओके, हैप्पीनेस, पीस, एनीथिंग एल्स, अंडरस्टैंडिंग, getting closer, yes, contentment, yes, in some situations it's contentment. And very beautiful thing, भगवान को क्या कहते हैं, दया का सागर. एंगर का एंटीडोट है मर्सी, मर्सी. जैसे हमें गुस्सा क्यों आता है, जब कोई बहुत ऐसी हरकत कर रहा है जो कि हमें लग रहा है कि बिल्कुल नासमझी वाली बात कर रहा है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बार एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे कुछ लोग. सो वन ब्रदर वाज सिटिंग देयर, और उसने देखा कि एक भाई, वो ट्रेन में उन्होंने बोर्ड किया, साथ में उनके 3 बच्चे थे छोटे, लाइक एल्डेस्ट वन वाज 10 years old, then 6 years, then one is very small, 3 years almost. 3 बच्चे हैं और वो फादर, और वो बच्चे कभी सीट के ऊपर जंप कर रहे हैं, कभी किसी का सामान छेड़ रहे हैं, तो बार बार ना दे आर जंपिंग अराउंड एंड डिस्टर्बिंग एवरीवन, ऑल द पैसेंजर्स अराउंड. एंड द फादर इज जस्ट लुकिंग एट द न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर विदाउट इंटरफेयरिंग इन एनीथिंग, विदाउट सेइंग एनीथिंग टू दिस किड्स. नाउ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू दिस वन, उसको बहुत गुस्सा आया कि आप अपने बच्चों को संभालो, सबको डिस्टर्ब किया हुआ है, सभी पैसेंजर्स तंग हो रहे हैं, आप इनको संभालो. तो बहुत दुखी होने के बाद उसने बोला कि पहले वेट कर करके कि कुछ बोलेंगे ये, बट नहीं हुआ, तो उसने बहुत गुस्से में बोला. अभी वो फादर, ही वाज लाइक एक्चुअली वेरी सैड, और उसने बोला कि अभी 2 दिन पहले इनकी मदर की डेथ हुई है और बस उसके लास्ट राइट्स करके आ रहा हूँ मैं क्या करूँ. आई कांट से एनीथिंग टू देम, दे हैव लॉस्ट देयर मदर. सो एज सुन एज यू नो दिस स्टोरी, आपका गुस्सा मर्सी में चेंज हुआ. when you know the story, sometimes we don't know the story because everyone is living a different story. Every soul is living a different story, and when we don't know the story, we feel frustrated, we feel irritated, हमको गुस्सा आता है और या दुख होता है या हम डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं. जैसे ही मर्सी आई, दया आई, अब इस सिचुएशन में तो आपको पता चल गया स्टोरी. अगर नहीं भी पता है तो विद विजडम, विजडम का मतलब क्या होता है, विदाउट नोइंग द एक्चुअल स्टोरी यू यूज योर विजडम, कि ज़रूर इस
ये आत्मा दुखी है। जो दुखी है वही तो दुखी कर रहा है ना, जो दुखी होगा वो दुखी करेगा ना। Someone who is hurt many times in their life, they will hurt others. So actually वो आत्मा अंदर से परेशान है, वो अंदर से दुखी है। तो जैसे ही आप सोचेंगे कि बीमार है, दुखी है, तो गुस्सा आएगा या रहम आएगा? रहम आएगा। तो ट्रांसफॉर्म हो गया ना। So using the wisdom and after that making that wisdom into power. So when I often use the wisdom, often using knowledge, that becomes my strength, that becomes my character, my personality. तो धीरे धीरे ऐसा होएगा कि गुस्सा आएगा ही नहीं, गुस्सा नहीं आएगा immediately. This is called empathy. जहाँ empathy है वहाँ पर फिर परेशानी नहीं होती है, वहाँ पे हम we can step into other person's shoes, we can see the things in a different perspective. तो हमको समझ में आता है कि परेशान है। तो अब ये सारी जो बातें हैं इसके पीछे क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ करना है? मुझे अपना करना है। तो इसलिए कहा लोड़ी माना लो हरि, हरि को दे दो, ले लो। मेरी वीकनेसेस, मेरी कमज़ोरियाँ, मेरी जो मेरे प्रोग्रेस में जो भी मेरा बैरियर बन रही हैं, जो मेरी चीज़ें, वो सब ले लो। और फिर आती है संक्रांति, सुसंस्कारों की क्रांति, अच्छे संस्कारों की क्रांति। सो देन आई स्टार्ट रिपीटिंग द पॉजिटिव पैटर्न्स इन माई लाइफ। एक बार ही रियलाइज किया, एक नया इक्वेशन बनाया, अपने लिए इक्वेशन बनाना है। अभी भी हम कोई ना कोई इक्वेशन पे चल रहे हैं हम सारे। कुछ इक्वेशंस हमारे बचपन से बने हुए हैं जो अनजाने में बन गए और वो हमारे सबकॉन्शियस में है। जैसे हम बहुत छोटे थे, यू वर वेरी लिटिल चाइल्ड, यू वर हैप्पी विदाउट एनीथिंग ऑल्सो, राइट? द चाइल्ड कैन प्ले विद एनीथिंग। तो उसको कोई मतलब नहीं है ये खिलौना महंगा है या सस्ता है या कैसा है, वो तो पत्थर से भी खेल रहा है, मिट्टी से भी खेल रहा है, राइट? सो इट हैज़ नो मीनिंग फॉर हिम, ही इज जस्ट हैप्पी विदाउट एनी रीज़न। फिर वन गुड डे the father is bringing a very good toy, very expensive toy for the child and giving to that child and saying, now you are happy, I'm bringing you such a good thing, now you are happy. So somewhere in the subconscious, I'm feeding in the subconscious of that child, when you get something then you are happy. तो हमने एक इक्वेशन अनजाने में डेवलप कर दिया कि कुछ पाना इज इक्वल टू हैप्पीनेस। रिसीविंग समथिंग, गेटिंग समथिंग, जब कुछ मिलता है तो खुशी होती है। तो बहुत बहुत सटल इक्वेशन अंदर डेवलप हो गया। सो इफ माय सबकॉन्शियस माइंड इज अंडरस्टैंडिंग कि कुछ मिलने से खुशी होती है, तो फिर कुछ खोने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली इक्वेशन बन गया ना कि कुछ खोने से दुख होता है, और खोने से पहले ही अगर खोने का सोचने लगते हैं तो क्या होता है? डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है। फियर एंड इनसिक्योरिटी इज द रिजल्ट ऑफ दिस रॉन्ग इक्वेशन इन माय माइंड, इन माय सबकॉन्शियस माइंड, जो मेरे अंदर बन गई है बचपन से, मुझे पता भी नहीं चला। इसीलिए एवरी टाइम वी आर थिंकिंग कुछ मिले। अब इट कुड बी एनी मटेरियल थिंग, बट इट कुड बी एनी सटल थिंग ऑल्सो। जब रिस्पेक्ट मिले, खुशी मिले, कोई केयर करे, कोई प्यार करे, कुछ मिले, अटेंशन मिले, कोई पूछे तो सही, कोई सामने से मुझे हेलो, उसने बोला ही नहीं, मिला सबको बोला, मुझे हेलो नहीं किया, अरे। so much dependency, because ultimately soul needs happiness, na? So we are seeking for that happiness always, but we don't know how to get it, where to get it, so we start seeking from outside. तो जो भी अब अपनी इक्वेशन को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो रॉन्ग मिसकॉन्सेप्शंस हैं, रॉन्ग आइडियाज़ हैं जो मन के अंदर, वो मुझे सरेंडर करने हैं पहले, वो मुझे उसको देने हैं। लो हरि, ले लो, तब सच्ची लोहड़ी मनाएंगे ना। तो वो तो एक्सटर्नल तो इजी है, आपने आग जलाया, आपने गीत गाया, आपने
अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया, दैट्स इजी, वो तो सभी कर लेते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वे में उसको सेलिब्रेट करना, सच में अग्नि में आज कुछ ना कुछ जलाना है। डू वी हैव एनी पेपर एंड पेन हियर? जस्ट मे बी वी कैन, otherwise you can use the tissue also. I can see the tissue being resourceful. No, I mean to write something on a paper. If you have paper, you can just cut it into small pieces, or if you have small pieces, that is also fine. Piece of paper. Acha, notebooks hai. No, I mean just small slips needed. Okay, very nice, very nice. Happy New Year gift, New Year gift. So you can take out one paper also, क्योंकि सरेंडर करके जाना है आज कुछ ना कुछ। जाने से पहले इसमें कोई एक ऐसी चीज लिखेंगे आज जो मुझे दान में दे देनी है आज। लो हरी दे दिया, आहुति देनी है उसको, अग्नि में डालते हैं ना, तो आज इसमें मेडिटेशन में भी ऐसे ही आज विजुअलाइज करेंगे। अभी हम करेंगे ना मेडिटेशन लास्ट में जब, लेकिन उससे पहले आप साथ साथ जस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन योर लाइफ एंड व्हाट इज हैपनिंग रिसेंटली। मेरे लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं उसमें मैं आइडेंटिफाई करूं मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे तंग करती है, जो मुझे डिस्टर्ब करती है। वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और वो हर सिचुएशन में अलग अलग फॉर्म में आती है, बस होती एक ही चीज़ है, एक ही वीकनेस होती है। समटाइम्स यू नो यू आर टू सेंसिटिव समटाइम टू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, जो भी कमजोरी है। आ रही है कुछ ध्यान में? आ रही, लिख रहे हैं साथ साथ। सो वेन एवर यू फील लाइक राइटिंग यू कैन राइट। सो क्योंकि वो हमने आज आहुति देनी है, उसको सरेंडर करना है। दिस इज द रियल सैक्रिफाइस। क्योंकि वैसे पॉकेट में से कुछ निकाल के देना ना इजी होता है, लेकिन जो अंदर में बैठ गया सबकॉन्शियस में, वो वाला थोड़ा मुश्किल होता है। माउंट आबू में ना एक बॉक्स रखा हुआ है, दान, अनोखा दान पात्र। तो वो अनोखा दान पात्र है, दैट इज अ डोनेशन बॉक्स। बट इन दैट डोनेशन बॉक्स व्हाट यू हैव टू गिव, डोनेट इन दैट बॉक्स इज, उसके साथ में पेपर रखा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या जो भी और भी। ये तो 5 विकार है ना, लेकिन इस 5 विकार के एक एक का बड़ा बड़ा परिवार है, एक एक विकार का बड़ा परिवार है। जैसे क्रोध है, एक विकार है, लेकिन उसके साथ इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कभी कभी वो मौन वाला गुस्सा होता है। एक तो आवाज़ वाला होता है, और एक वो मौन वाला गुस्सा होता है जिसमें आप बात करना बंद कर देते हैं। फिर आप बोलते हैं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वो कुछ ना कहना भी बहुत पेनफुल होता है कई बार, दूसरे के लिए भी। सो देयर आर डिफरेंट वेज। तो क्रोध का भी बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, ईगो का, अहंकार का भी बहुत बड़ा परिवार है। सो आई हैव टू आइडेंटिफाई कि क्रोध का कोई बाल बच्चा छोटा मोटा कोई अंदर बैठा है किसी भी रूप में, अहंकार का कोई भी पीस एंड ट्रेस ऑफ दैट एनीथिंग स्मॉल अगर अंदर बैठा हुआ है, तो उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है। जिसको कभी कभी हम अपने को ना जस्टिफाई कर देते हैं कि इतना तो होता ही है ना, इतना, इसके बिना तो काम कैसे चलेगा। जहाँ पे हम ये कह रहे होते हैं ना इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वी आर डिसीविंग आवर सेल्फ, एक्चुअली वी आर चीटिंग आवर सेल्फ कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए हम तो थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं। तो ऐसे सुनते सुनते ऐसे ऐसे करते रहिए। वो एक टाइम आएगा जब वो चल पड़ेगा। ठंडी भी है ना, मौसम ठंडा है इसलिए। और इसके बाद से थोड़ा सा मौसम भी बदलता है ना, लोहड़ी के बाद में मौसम बदलता है, ठंडी इसके बाद थोड़ा कम होनी शुरू हो जाती है। सो दिन भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज अनदर सीक्रेट, बिकॉज यहाँ से परिवर्तन शुरू होता है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है।
सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग. लाइट बढ़ रही है और डार्कनेस कम हो रही है इसके बाद. तो डार्कनेस कम कैसे करेंगे? हाउ टू रिड्यूस, डिक्रीज द डार्कनेस? ब्रिंग द लाइट, ब्रिंग द लाइट. क्योंकि डार्कनेस को तो निकाल नहीं सकते. अभी अब कमरा समझो लाइट्स ऑफ है, सब कुछ है, अंधेरा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. अब डार्कनेस को बाहर निकालना है तो झाड़ू लगा के तो नहीं निकलेगा. कैसे निकलेगा? जस्ट ब्रिंग द लाइट, डार्कनेस इज गॉन. सो एक चीज़ और इससे जो हमें समझ में आती है कि मुझे अपने आप को कभी भी गिल्ट में जाकर के ये नहीं बोलना कि मेरे अंदर तो ये वीकनेस है. तो इसका मतलब हम कहाँ, हमारा फोकस कहाँ हो गया? डार्कनेस पे, अंधेरे पे फोकस हो गया कि मेरे से तो नहीं हो रहा है. इट्स बीन लॉन्ग टाइम आई एम ट्राइंग बट इट्स नॉट हैपनिंग. मे बी आई एम नॉट गुड इनफ. समटाइम्स वी गो इनटू दैट गिल्ट फीलिंग कि मेरे से तो नहीं हो रहा है. So instead of that, instead of focusing on the negative side, what I start doing is I bring the light. Every day I bring a little light because I connect with the Supreme Light. So when I connect with the Supreme, I bring that light into myself. तो darkness अपने आप ही धीरे धीरे कम होती जाएगी. लेकिन again, once again I am repeating, जो शुरू में हमने बात की, अग्नि कैसे जलेगी? अग्नि में आहुति देनी है ना. अब अग्नि ही ठीक से ना जले तो आहुति कहाँ से देंगे फिर? अग्नि जलेगी कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से. अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा. चाहे छोटा छोटा स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लें हम, बट एवरी डे आई एम मूविंग फॉरवर्ड. एवरी डे आई एम प्रोग्रेसिंग. Every day I'm making some effort, a little bit effort on myself also. धीरे ही सही, लेकिन दोनों पाँव से चलते रहिए. चल रहे हैं, रुक नहीं सकते हैं. Because the flow of Kaliyug is such, it's in a very negative direction. And what we are doing is, if you are on a path of spirituality, you are actually going against the flow. So if you stop in between, what will happen? That flow will bring you backwards. तो या तो हम आगे जा रहे हैं या फिर हम पीछे जा रहे हैं. रुक नहीं सकते हैं. तो जैसे ही रुके, तो इसलिए मुझे बस रुकना नहीं है. रुकना यहाँ से ही होता है, सब कुछ यहाँ से ही होता है. It's all about my consciousness. सो परमात्मा से शक्ति कंटिन्यूसली. तो इसलिए जो हमने पहले दिन प्रैक्टिस की बात की थी, ट्रैफिक कंट्रोल, वो ध्यान में है सबके? कर रहे हैं? ध्यान में है? कर रहे हैं? हाउ मेनी टाइम्स? एटलीस्ट एवरी डे समथिंग, 1 or 2 times. ओके. हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग ट्रैफिक कंट्रोल? यस, यू हैव बीन डूइंग. एक्चुअली भाई तो ट्रैफिक कंट्रोल डूइंग in here doing, yeah. She came from very far. You got traffic on In the center, I do. In the center I do. Center no need actually, because you're already in that atmosphere. But when you are in the traffic, then you need traffic lights. Right? When you are in a practical life, you're facing different situations, then you have to stop yourself. So कम से कम दिन में 5 बार, 5 times, 1 minute each. आप अलार्म लगा लो या कैसे भी कर लो. So just to bring that regularity कि मुझे रुकना है. फिर जब रेड लाइट आ गई है तो रेड लाइट कुछ भी हो तो रुकना ही पड़ेगा ना. फिर तो कितना भी आप जल्दी में हो, कितना ज़रूरी काम है, रेड लाइट पे तो रुकेंगे. तो ट्रैफिक कंट्रोल इज समथिंग लाइक दिस कि आई रिमाइंड माई सेल्फ आई हैव टू स्टॉप फॉर अ वाइल. ठीक है. तो अभी हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे और फिर मेडिटेशन में आपको जो भी इंस्पिरेशन आती है कि कौन सी चीज़ आज आपने दान करके जानी है, वो उसको लिखना. ठीक है. इट कुड बी मोर देन 1, बट एटलीस्ट 1.
एटलीस्ट वन समथिंग कि मुझे ये चेंज लाना है और ये दान करना है मुझे आज. ठीक है, चलिए अभी नाउ वी सिट इन मेडिटेशन फॉर सम टाइम. ओम शांति. I take a deep breath in and let it out. I relax myself. अपने मन को चारों तरफ की बातों से निकालकर अपने पास ले आए. I step inside. Talk to myself. Who am I? मन की आंखों से देखेंगे मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा. Point of light, shining star. This is my true self, my true identity. I am the eternal being of light. मैं आत्मा परमात्मा की संतान. In this silence, I reflect upon my life. Whatever is the situation outside, साइलेंस में बैठ के देखेंगे पिछले 2-3 वीक्स में जो भी बातें आई, जो भी चैलेंजेस आए, उन सब में कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मुझे थोड़ा परेशानी हुई. Something that disturbed me, some challenge or situation or a person where I lost my peace, I lost my happiness, even for a moment. Ask yourself, अभी शांति में बैठकर आइडेंटिफाई करेंगे मेरा कौन सा वो संस्कार है जिसकी वजह से कोई भी बाहर की बात मुझे डिस्टर्ब करती है. या मेरे मन की शांति थोड़ी कम हो जाती है. Let me identify my weakness because of which I lose my happiness or peace.
some old habit, sanskar, some pattern in my subconscious. I take this chance in this moment of silence to look within and identify that. अब मन ही मन परमात्मा से बात करेंगे कि आज मुझे अपना ये संस्कार, अपनी ये पुरानी हैबिट या वीकनेस अर्पण करनी है. I surrender any of that weakness which I can identify. I surrender to God. जैसे ही मेरा मन रियलाइज करता है, I start receiving special blessing and power from God. Let me visualize. मन की आंखों से देखेंगे ऊपर आसमान से भी परे उस परम धाम से परमात्मा का प्रकाश, उनकी लाइट, वो शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर आ रही है. महसूस करेंगे as if this shower of blessings and divine powers falling upon me, and I am absorbing that divine energy, divine power. जैसे जैसे वो प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश करता है, मेरा मन शांत होता जाता है. वो प्रकाश जैसे जैसे मेरे अंदर आ रहा है, I'm absorbing that divine light. I feel the peace within, as if all my questions are resolved. And my weakness vanished. I feel the power, the strength within. अब दिल से using this strength, using the power, the divine power, I take this step of courage to surrender my weakness to the Supreme. Because I know He will transform my weakness into my strength. He is the ocean of love, the ocean of mercy. उसका प्रकाश जैसे जैसे आता है, अंदर का अंधेरा, डार्कनेस दूर होता जाता है.
मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Now you can take a moment to write down आज क्या आहुति देनी है, क्या दान में देके जाना है। और याद रहे, दान की हुई चीज वापस नहीं ली जाती है। दान देके वापस लेने वाले को क्या कहते हैं? और वैसे भी जब हम दान देते हैं और परमात्मा को देते हैं तो अपने आप ही नेचुरली यू रिसीव दैट पावर, शक्ति मिलती है कि हमें वो चीज़ वापस नहीं आए। क्योंकि जब हम लिख रहे हैं तो एक कमिटमेंट अपने आप से भी है और बाबा से भी कमिटमेंट है, सुप्रीम फादर से। टेक अवे एंड पुट इन द ट्रे प्रॉपर्ली ऑल। We can just fold it and put it here later on. When later on you will come to receive the prasad, that time you can put it there. सबने लिखा? पेन नहीं चल रहा है? You can share with each other. If somebody needs, have, yeah. Here. Below? Here. Okay. What I want to give to Baba today. Any weakness I surrender. But after giving, cannot take it back. You know what to write, right? Today you have promised, you can write that one. तो एक तरफ आपने ये लिखा, अब साथ साथ you can also easily identify कि if I want to donate this, then in return, what kind of power, what kind of strength I'm receiving from the Father, the Supreme Father. What is that strength? I am not asking you to share your weakness, but if you allow me, that I can ask you that what is the strength you are receiving? What did you feel in meditation? जब आपने देखा कि शक्ति मिल रही है, तो especially if you want to share in 1 line, 2 lines, what's your feeling? You can also share that way. हाँ जी. ट्रैफिक लाइट जो है वो प्रोसेस बहुत ही इफेक्टिव हो रहा है. Even if I don't go for a minute, but most of the time I get that thing in my life that I have to control my traffic. ये वाला traffic. So that connects me for a fraction of seconds or something. ये हो रहा है. Very nice, very nice. और अभी जो meditation किया and you felt the strength, if you want to share, what's the feeling? Just the feeling. Yeah. Sandhya, okay. So first I was I was trying to understand the situation, that what made me feel Uncomfortable. uncomfortable. So it was difficult for me to understand that what was my sanskar that was, not letting me understand the situation and making me feel weak.
So finally I got the answer. So after filtering everything, Because usually we are focused outwards. We are focused that कि उसने किया, उसकी वजह से हुआ, बात ऐसी थी. Now we are not able to look inside. Usually it is happening. yeah. Mhm. So was difficult for me, but I could understood that what was the thing which was stopping me to understand the situation. Then I felt I got the answer, and the first answer was mercy, Mm. and another one was that sometimes you just have to accept the situation as it is coming and let go. Let go. So the power to let go, then you received power to let go. Yeah. Because it needs a lot of strength to let go. Right? Also, I experienced in Give the mic. whatever weaknesses I've written down, I experienced that in meditation. I was just absorbing the powers, and then I felt that God is giving me the powers, and He's saying, I am the ocean of all the strength, and you are my child. And being His child, so I am also a master ocean of strength. So if I don't change, then who else will correct His powers? So I felt strong that it's very easy. You just have to put yourself to it and implement it. So that was a strong good feeling of energy transmission. Very nice. शिवी भाई कुछ बोलेंगे आप? 2 लाइन तो बोलिए, अनुभव शेयर कीजिए. Meditation is always a source of strength for me, and this I always get power from it, and more than anything else, it calms me down. Yeah. So I always feel very powerful with very early morning. I Yeah. do very early morning, and traffic control is part of my life for more than 10 years now. So I don't have to put an alarm for it. Yeah. Of course, source of strength. That's very nice. Actually, I just want to say one thing. जैसे हम बोलते हैं ओम शांति, तो it's about शांति, peace. And mostly people are also asking for मन की शांति चाहिए. Basically, it is like that. So after many years of realization, I feel strongly that peace is a combination of all the virtues and all the powers. Because when you are really strong inside, then you can be peaceful. And also when you have imbibed the virtues in your life and practically you implementing all those things, then you can be at peace, at ease, no questions, anything happening, but you don't, your mind is not raising question marks all the time. You have the answers. You know how to use the wisdom in day-to-day life. So चाहे आप बात करो ज्ञान है, शक्ति है, गुण है, वर्चूज है, या और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जब वो सारी क्वालिटीज़ को आप इम्बाइब करते हैं, देन द रिजल्ट इज़ पीस. अब मन शांत हो गया, अभी कुछ नहीं चाहिए. सो दैट्स वाई वर्चूज़ में भी सबसे टॉप पे, द क्राउन ऑफ ऑल द वर्चूज़ क्या है? कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट इज़ द किंग और किंग ऑफ ऑल द वर्चूज़. सब आ गया, कुछ नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चंस नहीं. सो दैट इज़ कंटेंटमेंट. और जब कंटेंटमेंट है तो शांति है, मन शांत है, हलचल नहीं है, कोई रिपल्स नहीं है, पानी जैसे ठहर गया. तो वो जो ठहराव है, दैट इज़ बेसिकली, दैट इज़ द फाइनल स्टेज. और फिर उसके ऊपर क्या है? फिर कंटेंटमेंट आ गया, शांति आ गई, फिर उसके ऊपर क्या है? आनंद है, ब्लिस है, ब्लिसफुल स्टेज. यस, जैसे अभी शिव भाई ने बोला मुक्ति. यस, एंड ट्रू लिबरेशन इज लिबरेशन इन लाइफ. ठीक है? यस,
liberation while living in this life. When I am liberated from the bondages of karma, bondages of attachments, and bondages of expectations, demands, desires, when I'm free from that, then I'm truly liberated, which means contentment. So contentment is actually liberation. It's true freedom. क्योंकि दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, कंटेंटमेंट एंड ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड के बिना कंटेंटमेंट नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है तो ग्रैटिट्यूड नहीं हो सकता है. संतुष्ट नहीं है अगर तो थैंकफुल कैसे होंगे, ग्रेटफुल कैसे होंगे. इसलिए बार बार तो यूजुअली वी गिव वन प्रैक्टिस टू एवरीवन कि एक दिन में कम से कम 21 टाइम्स थैंक्स बोलना है उसका. और यूं ही नहीं बोलना है, बात एक पॉइंट लेकर के बोलना है. कोई भी सिचुएशन में उसका शुक्रिया करना है. तो वो कोई सिचुएशन नेगेटिव भी हो सकती है, अच्छी बात में भी उसका शुक्रिया करना है. और कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जो देखने में बहुत अच्छा सीन नहीं लग रहा है, बट देन फाइंड आउट अ रीज़न टू बी ग्रेटफुल. उसमें भी कैसे शुक्रिया करें, उसमें भी कुछ तो अच्छा होगा. लाइक इससे भी बुरा हो सकता था. इतना ही हुआ. जैसे वो मैंने बात सुनाई थी ना कि एक बार यूथ का प्रोग्राम कर रहे थे तो उनको हमने ये होमवर्क दिया यूथ ग्रुप को कि आपने कल नेक्स्ट सेशन के लिए आना है, तो 24 आवर्स आपको ये प्रैक्टिस करनी है, हर चीज़ में शुक्रिया करना है. सो वन ऑफ द बॉयज़ ही केम नेक्स्ट डे एंड ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस कि यहाँ से हम बाहर निकले. एज सुन एज आई वेंट आउट आई फेल डाउन. इट वॉज रेनिंग, तो वो पूरा कीचड़ है उसमें, वो बेचारा ही फेल डाउन और सारे कपड़े ख़राब हो गए. और जैसे ही गिरा आई सेड थैंक यू गॉड, शुक्रिया. किस लिए कि टांग नहीं टूटी कम से कम. सिर्फ कपड़े ही ख़राब हुए, टांग नहीं टूटी. इट कुड बी वर्स, राइट. सो जस्ट आई हैव टू डू माई रीप्रोग्राम योर माइंड इन दिस वे कि हर चीज़ में मुझे ढूंढ के भी उसमें क्या बेनिफिट है. हर बात में कल्याण है क्योंकि ईश्वर कल्याणकारी है. और ईश्वर कल्याणकारी है और हम उसके बच्चे हैं, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता. मेरे साथ बुरा हो नहीं सकता. अगर बुरा दिख रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा तो है. सो आई जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट. सो इट विल बिकम लाइक अ हैबिट, लाइक अ गेम कि बुरे में भी अच्छा ढूंढना है मुझे. पुरानी एक बात याद है. हाँ जी. हमारे टाइम पे एक मास्टर जी हमारे सुनाते थे कि एक बंदा मिठाई बांट रहा था. उनके मिठाई क्यों बांट रहा है? कहते जी कल मेरी पैंट घूम गई. कहते फिर क्यों बांट रहा है? कहते शुक्र है मैंने डाली नहीं थी, मैं भी घूम जाऊँ. So you can find any benefit in any situation actually. So अभी जैसे एक बार ऐसा हुआ हमारे साथ, ग्रुप के साथ रिट्रीट के लिए गए हुए थे, तो एक माता जी थी, वो गिर गए. पहला ही दिन था, अभी 5 दिन और थे. पहले ही दिन गिरने से उनका थोड़ा सा फ्रैक्चर भी हो गया. सो एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में, नियर बाय हॉस्पिटल में. बट शी वॉज़ वेरी हैप्पी. उन्होंने कहा कि पहली बात ये, पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ होने वाली थी, छोटी हो गई, सूली से कांटा हो गई. और दूसरी बात ये कि आप सब मेरे साथ हो केयर करने वाले. अगर अकेले होते तो कितना मुश्किल हो जाता. तो जो मुझे मिल रहा है, आई हैव टू सी दैट कि कितने लोगों की हेल्प मिल रही है, कितनी मुझे मदद मिल रही है. आई एम नॉट लैकिंग एनीथिंग. आई एम एबल टू गो टू द हॉस्पिटल. आई एम एबल टू अफोर्ड द थिंग्स विच आर नीडेड. सो ऑल दिस थिंग्स, इफ़ वी स्टार्ट सीइंग द पॉजिटिविटी, तो कितना अंदर से शुक्रिया निकलेगा. अभी लास्ट में एक चीज़ करेंगे, फिर प्रसाद, एक गेम करेंगे, शुक्रिया एक्टिविटी. ओके. सो हमने क्या बोलना है? शुक्रिया बाबा शुक्रिया. क्या बोलना है? शुक्रिया बाबा शुक्रिया. तो एवरीवन विल स्पीक वन सेंटेंस कि मेरे लाइफ में क्या क्या है जिस चीज़ का मुझे शुक्रिया करना है.
तो आपने एक सेंटेंस अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कि मुझे क्या क्या मिला है वो आप बोलेंगे, और फिर उसके बाद सब लोग एक साथ बोलेंगे शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ठीक है, कौन स्टार्ट करेगा कि मुझे क्या दिया भगवान ने? भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, सब कुछ तो दिया ही, मटेरियल और सबका प्यार सब कुछ दिया, मगर उसके साथ साथ ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस और फैमिली में ऐसे लोग भी थे जो कि मेरे चैलेंज, और अब मैं समझती हूँ काफ़ी देर पहले की, काफ़ी देर से कि ये सब मुझे अच्छा ही करने के लिए, मेरी वीकनेस को ही करने के लिए, ठीक करने के लिए आए, क्योंकि वो मेरे लिए जैसे स्टेपिंग स्टोन्स बने, नहीं तो कहीं मेरे संस्कार। अभी हम इसको गेम की तरह करेंगे, ठीक है? आई विल स्पीक फर्स्ट, ठीक है? मैं शुरू करती हूँ कि मुझे बचपन से लेकर के अच्छा घर का वातावरण मिला, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा एजुकेशन मिला, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और जो भी रेडी है आप बोल सकते हैं। मुझे ब्रह्म कुमारी में आने का मौका मिला, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। यस, मुझे भगवान का नाम जपने को मिला, तो शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सब साथ में बोलेंगे। नेक्स्ट, मैं मेडिटेशन सीख के बहुत कुछ जिंदगी में शांति मिली, सुख मिली। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। नेक्स्ट, मुझे बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले यहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वेरी नाइस। अच्छा परिवार, अच्छा मित्र हर जगह मिलते रहे। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। नेक्स्ट, मुझे गुरु मिला बहुत अच्छा, जो मुझे मेडिटेशन करने को कहता है। शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कौन रेडी है? नेक्स्ट, ये ट्रैफिक सिग्नल का फॉर्मूला मिला। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। यस, next, Rose, you want to say something? You know what we are doing, right? I'm gratitude for I'm here. Shukriya Baba, shukriya. Yes. I'm gratitude for everything. Be specific. Yes. मुझे बहुत अच्छी टीचर मिली, सिस्टर सपना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। टीचर, वो सुप्रीम टीचर। यस, मैं यहाँ आई ब्रह्मा कुमारी में, मुझे अच्छी अच्छी बातों की जानकारी मिली। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। A lot of planning we made this happen, that every week we are doing meditation. Very good. And शुक्रिया बाबा and शुक्रिया मोहन भाई जी also. Yes. So first मोहन भाई जी and शिवी भाई जी, I got this motivation actually कि हम तो आएंगे ही आएंगे और कोई आए ना आए। और किस बात का शुक्रिया करेंगे? मुझे संतों का संग मिला, इस बात का शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आपने तो बोला। रोजी जी, लव ऑफ फैमिली, आई थिंक दैट इज माय स्ट्रेंथ। वेरी गुड। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आपने बोला? नहीं बोला। मुझे यहाँ आने का मौका मिला। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अब एक शुक्रिया का सॉन्ग चलाएंगे, ओके? मेडिटेशन एंड साथ में अभी शुक्रिया के ही ग्रैटिट्यूड फीलिंग में ही वी विल सिट फॉर फ्यू मिनट्स विद दिस सॉन्ग एंड देन वी गेट द प्रसाद एंड we have a small gift for all of you also. This is a magnet for the fridge with a beautiful slogan on that. So you can put it fridge पे या कहीं भी metal surface पे, you can use that. सुनना भी इबादत है, उसे दिल की